Hello dear students, my name is Dr. Vishalivi and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So today, in continuation with chapter 4, I'll tell you about the Lewis dot structure. The basic trick how to draw the Lewis dot structure और उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि Lewis dot structure में हमें क्या क्या चीजें चाहिए. So first thing what we need is valence electrons. Valence electron क्या होते हैं? Valence electron is the number of outermost electrons. यानी सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए दैट इट्स ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग एंड दैट आर इन्वॉल्व इन दिस लोइस डॉट स्ट्रक्चर. Second thing we should know is about the octet rule. Octet rule means having 8 electrons in their valence shell. So for most of the elements it is 8 element. For hydrogen, lithium, beryllium will be having 2 electrons. So we call it as duplet. So having 8 electron in the outermost shell makes the structure more stable. So otherwise, hydrogen, lithium, beryllium will show duplet. Now it is the central atom. The central atom that can neglect this octet rule. यानी ये octet rule को neglect कर सकता है in some cases, not always, in some cases. But there is a possibility कि 8 हो या उससे ज्यादा हो, उससे कम नहीं होते. So it is the central atom that can neglect this octet rule. Next point आता है सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करें. हाउ टू सेलेक्ट सेंट्रल एटम. सो सेंट्रल एटम कैन बी एनी एलिमेंट विच हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इट इज लेस इन नंबर, लार्ज साइज एटम और हुज एटॉमिक नंबर इज हाई. तो फर्स्ट थिंग हमें जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है. सेकेंड इज hydrogen or fluorine can never be the central atom. Reason being is they have only one valency. और central atom means जो एक से ज्यादा valency show कर सके. So they can never be. तो central atom generally कौन कौन से हो सकते हैं? It may be oxygen, it may be sulfur, phosphorus, carbon, nitrogen, chlorine, silicon. These may be the central atom. Now, next thing is जो surrounding atoms है, these surrounding atoms must complete their octet. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. नाउ अलॉन्ग विद दीज पॉइंट्स वी रिक्वायर वन मोर थिंग. वी नीड टू नो अबाउट द मैक्सिमम कोवलेंसी बाय एन एटम. व्हाट इज दिस कोवलेंसी? कोवलेंसी इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड प्लस लोन पेयर कितने प्रेजेंट है. दैट इज कोवलेंसी. सो वी शुड नो द मैक्सिमम कोवलेंसी. लाइक इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 2 है. फॉर सल्फर इट इज 6. फॉर नाइट्रोजन इसकी कोवलेंसी 5 है, लेकिन ये बॉन्ड सिर्फ 4 ही बनाता है. इट कैन नॉट मेक बॉन्ड्स मोर देन 4. फॉस्फोरस विथ 5 कोवलेंसी, कार्बन विथ 4 कोवलेंसी, क्लोरीन वी कैन हैव 7 कोवलेंसी, कार्बन वी हैव 4 कोवलेंसी. कहां से आई है, किस तरह से आए? इफ आई गो विद दिस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इज कॉन्फिगरेशन 2-6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2-8 बना सकता है. सल्फर सेम विद नाइट्रोजन. Nitrogen has 5 valence electrons, so it can make 5 bonds. Okay, but 5 covalency नहीं बनती है, ये सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनाता है. 4 बॉन्ड में भी कैसे 3 बॉन्ड्स बनाता है और एक लोन पेयर रहता है. दिस इज द केस ऑफ नाइट्रोजन. सो बॉन्ड पेयर होंगे हमारे पास 3 और एक होगा लोन पेयर. इन द केस ऑफ फॉस्फोरस वी हैव द कॉन्फिगरेशन एज 3s2 3p3. तो टोटल दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. सो दिस वे वी कैन फाइंड. क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन हमारे पास शो करता है 7. इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड बना सकता है. सो दीज आर द मैक्सिमम कोवलेंसी. इससे कम में भी बॉन्ड बन सकते हैं, बट दीज आर मैक्सिमम कोवलेंसी. तो ये नॉलेज होनी चाहिए. नाउ वन मोर पॉइंट इज इफ यू हैव एनी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी. Now the thing is where this positive charge will go. So the positive charge will always go to the central atom. We'll discuss various examples how the positive charge will go and where the negative charge will go. The negative charge will go to the surrounding atom. Like if I talk about positive charge species NH4 plus, the positive charge will go to positive ion. Okay. Similarly, when I talk about negative charge species, the electron, say I'm having nitrate ion, the negative charge will go to surrounding atom. So this is how it takes place. Now, how to do this? What is the calculation involved behind this? So let us talk about. अब हम बनाना शुरू करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा. मैंने बेसिक चीज में आपको बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं,
देन ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। सिर्फ सिंगल एटम, सिर्फ सेंट्रल एटम जो है वही ऑक्टेट रूल को नेग्लेक्ट कर सकता है। सेंट्रल एटम कौन सा हो सकता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इट शुड बी हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन और हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। सिंगल एटम, सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट को ब्रेक कर सकता है, नेग्लेक्ट कर सकता है, बट इन अ कंडीशन कि वो 8 या 8 से ज्यादा हो। इफ यू हैव पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, पॉजिटिव चार्ज विल गो टू सेंट्रल एटम, फॉर नेगेटिव चार्ज इट विल गो टू सराउंडिंग एटम। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट द Lewis dot structure, how to draw this. So we have a formula. We need to find the valence electron of all the atoms present, and then we have any positive charge species, then subtract that number, and any negative charge species, then we add that number. What does it mean? Let us take it as x. We'll find the value of x as the valence electron on all the atoms plus any charge on negative charge species, whatever be the number. So it is -1. So आप इसमें ऐड कर देंगे माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, से NH4 प्लस. सो आप माइनस कर देंगे, यानी प्लस स्पीशी में माइनस करेंगे और माइनस स्पीशी में प्लस करेंगे. द रीजन बीइंग इज वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम, देन चार्ज ऑन नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज स्पीशी में, क्योंकि जब भी नेगेटिव चार्ज स्पीशी मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन एडेड, तो वी एड. इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीशी मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, देन माइनस करेंगे. सो प्लस के लिए माइनस करेंगे और माइनस के लिए प्लस करेंगे. इट मीन्स कि इतने इलेक्ट्रॉन एड या कम हुए. देन विल कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स. जितने भी बॉन्ड बने हैं मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 1 बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना. देन वी हैव लोन पेयर. व्हाट इज लोन पेयर? लोन पेयर इज x माइनस दिस बॉन्ड पेयर. Let us write it as BP, bond pair. So x minus bond pair. That is lone pair. So let us take very simple example H2. हमने H2 का एग्जाम्पल लिया. क्या किया? सबसे पहले हमने हाइड्रोजन लिया. हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए. इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम इज 1. वी हैव 2. सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 2. अब क्या करना है? ध्यान से सुनना. अब सबसे पहले आपको क्या करना है? आपने एटम्स को अरेंज किया. वंस यू अरेंज एटम, आपने एक सिंपल एक बॉन्ड बना दिया. ओके, यू हैव अरेंज द एटम एंड देन मेक अ बॉन्ड. दैट इज बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 2. बॉन्ड पेयर कितने हैं? कितने बॉन्ड्स है? एक बॉन्ड है. सो 1 into 2 into 1. सो बॉन्ड पेयर हो गए 2. व्हाट इज लोन पेयर? इज देयर एनी लोन पेयर? सो 2, दैट इज x minus bond pair. So 2 minus 2, there is no lone pair. So this is our correct structure. So H is our correct structure. अगर हम देखें इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है. इस H के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस H के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. Yes, its duplet is also complete. Let us take another example. O2. क्या करें? आप कहेंगे मैडम इतना सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं. O2 बेसिक से शुरू करते हैं, आपको बनाना आ जाए, उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल्स लेंगे. Let us talk about the valence electron. Valence electron on oxygen. Oxygen we have 2,6. We have 2 oxygen atoms, so 2 into 6, 12. We have 12 electrons. So X is 12. क्या करें? ड्रॉ कर लेते हैं. डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पहले सिंगल ही बनाएंगे. सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बनाया आपने. कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड. तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ? बॉन्ड पेयर इज 2 into 1, 2. लोन पेयर कितने हुए? लोन पेयर हुए आपके 12 minus 2, दैट इज 10. इन लोन पेयर्स को इन ऑक्सीजन पे अरेंज करना है. कैसे करें? वी हैव 1 2 3 4 5 6, बचे कितने? 4 7 8 9 10. अरेंज कर दिया. आप इधर भी 3 पेयर लगा सकते थे, यहाँ 2 पेयर. मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया. तो ये 10 पेयर्स जो थे अरेंज हो गए. दैट मीन्स हमारे पास टोटल 12 थे. ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर्स अरेंज हो गए. 12 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए. Now the thing is, let us see the octet, whether octet is complete or not. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, इसका octet complete है. Let us talk about this one. 1 2 3 4 5 6. इसका तो octet complete नहीं है. क्या करें भाई, क्या करें? जल्दी से इस पेयर को उठाया और हमने इन 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में इस पेयर को लगा दिया. अब क्या करें? अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बचे. 1 2 3 4. यहाँ पे कितने बचे?
अब ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंप्लीट. सो दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कंप्लीट. समझ में आया? एक बार इसको वापस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं आयन का, ले लेते हैं H3O+. चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे. टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब हमें X निकालना है, प्लस माइनस स्पीशी माइनस चार्ज ऑन प्लस स्पीशी. तो ये चीज तो है नहीं हमारे पास, वी डोंट हैव दिस बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, तो हमें माइनस ही करना है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम 1 into 3. हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 2,6 -1 कितना हुआ? 6 + 3 9 -1 8. सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है. चलिए सेंट्रल एटम लिया हमने, क्योंकि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हैज टू बी टेकन इन दिस केस. राइट. अब क्या करें? 8 इलेक्ट्रॉन्स है. बॉन्ड पेयर कितने हुए? सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड ही लगाना है बच्चों, ध्यान रखिएगा. सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ही लगाना है. सो एक H 2 H 3 H 1 2 3 3 बॉन्ड है, यानी 2 into 3. सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए. बचे 2 जाएंगे हमारे लोन पेयर से. लोन पेयर क्या हो गया? 8 - 6 दैट इज आवर लोन पेयर. एंड ये लोन पेयर कहां जाएगा? दैट लोन पेयर देखते हैं. ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं पहले. सराउंडिंग एटम इट इज हाइड्रोजन, सो इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा. 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट. लेट अस टॉक अबाउट दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए. सो 2 लोन पेयर आ गए. सो ऑक्टेट भी कंप्लीट है. हाइड्रोजन के डुप्लेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. एंड दिस लोन पेयर विल गो टू ऑक्सीजन. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर दिस पॉजिटिव चार्ज विल गो. तो पॉजिटिव चार्ज विल गो टू ऑक्सीजन. अब आप कहेंगे ऐसे कैसे आपने ऑक्सीजन पे लगा दिया? मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन मीन्स द सेंट्रल एटम विच हैज पॉजिटिव चार्ज. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन आता है फॉर्मल चार्ज से. हाउ टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज? क्या फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का? V - L - B/2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2. जैसे ही हमने इसका फॉर्मल चार्ज निकाला तो हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है. लेट अस सी हाउ. फॉर ऑक्सीजन आई विल जस्ट टेल यू अबाउट ऑक्सीजन. फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम V इज कितना है? 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं? 2 माइनस बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3 4 5 6 6/2. बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? जितने भी बॉन्ड से मल्टीप्लाई बाय 2. लोन पेयर क्या है? जितने जो डॉट्स लगे हुए हैं दैट इज लोन पेयर. व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज सेम, कम्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल. सो 6. सो सॉल्व किया कितना हुआ? 0 6 माइनस 5 +1. सो इट कम्स आउट टू बी +1 एंड दिस इज द रीजन. अब आप कहेंगे हाइड्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज डिसाइड करें. चलिए तीनों हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है तो सबका फॉर्मल चार्ज तो सेम होगा. लेट अस टेक एनी फॉर्मल चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम. सो हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. सो 1 माइनस लोन पेयर नो 0, बॉन्ड पेयर 2/2. एक बॉन्ड बन रहा है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. सो 2/2. सो दिस इज 1 - 1 0. So all hydrogen will be having 0 charge and oxygen is with positive charge. So that's why we have this positive charge on the central atom. So ये पता होना चाहिए कि central atom पे अगर positive आ रहा है तो ऐसे ही नहीं आ रहा है, उसका कुछ reason है. So the reason lies in the formal charge. Okay? चलिए let us take one more example. And example is NH4+. NH4+ में क्या करें? चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 5 + 4 - 1 दैट मीन्स 8. बॉन्ड पेयर ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर. 1 2 3 4. बॉन्ड पेयर कितने हुए? 8. सो 8. लोन पेयर कितने हुए? नाउ देयर इज नो लोन पेयर. लेट अस सी द ऑक्टेट एंड डुप्लेट. फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन यस डुप्लेट देखेंगे हम. सो 1 2 complete, 1 2 complete, 1 2 complete, and for this hydrogen also 1 2 complete. This nitrogen having no lone pair, let us see its octet. 1 2 3 4 5 6 7 8. nitrogen का भी octet complete है. So this structure is complete. Now where this positive charge will go? कहाँ जाएगा? So positive charge जाएगा आपका नाइट्रोजन पे. Right?
फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। व्हाट इज दिस नाइट्रेट आयन? चलिए X निकालते हैं। नाइट्रोजन इज 5 प्लस ऑक्सीजन इज 6 इंटू 3 प्लस 1, 18 प्लस 5 23 प्लस 1 24। स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3, नाइट्रेट आयन स्ट्रक्चर बनाया। ओके, अब क्या होगा? वी हैव 24 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर कितने हुए? 1 2 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3 6। 24 में से 6 का कितने बचे? 18। ठीक है, अब इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को लें और हम इनमें लोन पेयर लगाना शुरू करें, क्योंकि हमें सबसे पहले सराउंडिंग एटम्स के ऑक्टेट देखने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 18 पूरे कंज्यूम हो गए। दैट मीन्स हमारे पास अब कोई लोन पेयर नहीं रहा। नाइट्रोजन एटम पे कोई लोन पेयर नहीं रहा। टोटल तो 18 है ना, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। चलिए नाइट्रोजन का हम ऑक्टेट देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्या किया जाए? अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कोई भी एक ऑक्सीजन एटम विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेक अ बॉन्ड विद नाइट्रोजन। क्या हुआ? लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर हियर। यहां डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन तो यहां 3 है, माइनस चार्ज किस ऑक्सीजन पे लगे? ऑक्सीजन तो यहां 3 है, माइनस चार्ज किस ऑक्सीजन पे लगे? पहले तो ऑक्टेट देख लेते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया। लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8, नो लोन पेयर। नाइट्रोजन देयर इज नो लोन पेयर। अब क्या किया जाए? नाउ वेयर दिस नेगेटिव चार्ज विल गो। सो इस नेगेटिव चार्ज के लिए हम क्या करें? हम इस ऑक्सीजन एटम के फॉर्मल चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट अस राइट द फॉर्मल चार्ज ऑन दीज ऑक्सीजन एटम। सो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 कितना होगा? ऑक्सीजन नंबर 1 पे अगर फॉर्मल चार्ज की हम बात करें तो ये हमारा होगा, देखिए, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू V माइनस L माइनस B बाय 2। ऑक्सीजन पे लोन पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने हैं? अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो you'll find 1 2 3 4 लोन पेयर, माइनस बॉन्ड पेयर कितने? इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड मीन्स 4 बॉन्ड पेयर, 4 बाय 2। सो 6 माइनस 4 minus 2, that is 6 minus 6, it is 0. So it comes out to be 0. This is the formal charge on oxygen 1, तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं है. Let us see formal charge on oxygen 2. Oxygen 2 पे formal charge कौन सा है? Oxygen 2 पे formal charge देखते हैं, ये वाला. So it is V minus L minus B by 2. Valence electron 6. Lone pair कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. So 6 minus bond pair, एक ही bond है, so 2 by 2. कितना आया? 6 minus 7. So it comes out to be minus 1. अब देखिए ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3 आर हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर इसके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है तो दिस ऑक्सीजन विल आल्सो बी हैविंग -1 चार्ज, बट पूरे मॉलिक्यूल पे तो सिर्फ -1 है. सो व्हाट टू डू? लेट अस फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम आल्सो. फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन आल्सो. नाइट्रोजन में क्या होगा? V माइनस L माइनस B बाय 2. V कितना है? 5. L कितना है? 0. B कितना है? 4 बॉन्ड है, so 8 by 2. So 5 minus 4 comes out to be plus 1. So now we have to place plus 1 or put plus 1 on this nitrogen atom. जैसे ही आपने इसके ऊपर +1 लगाया, अब आप देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया? -1 plus 1. टोटल चार्ज आ गया -1. So this is the reason why we put minus charge on surrounding atom. So overall we'll get this as the answer. So it all based on the formal charge. समझ में आया? So this is about the nitrate ion. अब आप so let us take an example of sulfite ion SO3 minus 2. Okay, let us find X. X is कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हमारे पास टोटल? 6 plus 6 into 3 plus 2, 26. स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3. 3 ऑक्सीजन है, बॉन्ड कितने हुए? 6. 2 into 3 6. लोन पेयर कितने बचे? 26 minus 6 20.
20 लोन पेयर्स है, अरेंज करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 है यानी 6 थी 18, 18 हमने ले लिया, बचे 2. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कम ऑन दिस सल्फर एटम एंड द स्ट्रक्चर शुड बी करेक्ट. बट द थिंग इज ऑक्टेट तो कंप्लीट है सल्फर का, बट सल्फर जो है, यही मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी, सल्फर बीइंग सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल नेग्लेक्ट कर सकता है. सेकेंड, सल्फर मोर स्टेबल फॉर्म इज इन इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी अरेंजमेंट. मैक्सिमम कोवेलेंसी अरेंजमेंट जब कोई लेता है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, एंड अ कंपाउंड विद न्यूट्रल फॉर्मल चार्ज विद नो फॉर्मल चार्ज इज मोर स्टेबल. सो सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी के लिए क्या करें? सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू इज, सपोज आई एम टेकिंग दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आई विल मेक अ बॉन्ड विद दिस. सल्फर की कितनी कोवेलेंसी हो गई? 1 2 3 4. अभी भी सल्फर 6 कोवेलेंसी बना सकता है, 1 2 3 4 5 6. अब आप कहेंगे ऑक्टेट कहां पहुंच गया? ऑक्टेट तो पहुंच गया हमारा 12 में. तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट हमारा 12 में पहुंच सकता है. तो -2 चार्ज कहां जाएंगे? So what we do is sulfur 1 2 3 4. कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 1 2 3 4. -2 चार्ज कहां गया? एक माइनस इस पे गया, एक माइनस इस पे गया, बिकॉज दे आर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड. तो फॉर्मल चार्ज अगर आपको देखना है तो आप देखिए, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इट हैज डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मल चार्ज 0 हुआ. ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है, इसका फॉर्मल चार्ज -1 हुआ. ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, 3 बॉन्ड की बात कर रही हूं. आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड तो बनता ही नहीं है. 3 बॉन्ड मीन्स जैसे मैंने H3O की बात की थी, इफ ऑक्सीजन बॉन्डेड विद 3 बॉन्ड्स इट गोज +1. तो ये कुछ ट्रिक्स है आपको ध्यान रखने. ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रहा है, बाकी इसमें वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर बिकॉज वी हैव माइनस चार्ज ऑल्सो. सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस. इफ आई टॉक अबाउट सल्फेट आयन, सल्फेट आयन को किस तरह से अरेंज करेंगे? SO4 - 2. ये लास्ट एग्जाम्पल है और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा. सो सल्फेट आयन X 6 + 6 × 4 + 2 32. यस. बॉन्ड पेयर क्या करें? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हमने अरेंज किए, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे. कितने हुए बॉन्ड पेयर? 4 × 2 8. 32 - 8 कितने हुए? 24. लोन पेयर हो गए हमारे 24. 32 - 8 अरेंज करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हो गए? 6 चौक 24. 6 4 जा 24. वी हैव टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड. नाउ क्या किया जाए? क्या ये सल्फर स्टेबल है या मैक्सिमम कोवेलेंसी में जा सकता है? जी हाँ, जा सकता है. इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? मैक्सिमम कोवेलेंसी सल्फर की होती है 6. वो 2 4 और 6 तीनों शो कर सकता है. मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 और -2 तो 2 ही है, यानी 2 ऑक्सीजन को छोड़ दे तो 2 की कोवेलेंसी से एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से लिया, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया, नाउ द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल, आप देख लीजिए, इसका भी कंप्लीट है. एंड ये हम पहले ही कर चुके. बचा क्या? सिंगल बॉन्ड -1, सिंगल बॉन्ड -1. सल्फर का आप निकाल लीजिए. मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 2 3 4 5 6. So this is now the more stable structure. So this is how somewhere in the central atom can break the octet rule also. Now you practice for carbonate ion, phosphate ion, PO4 - 3. You make nitrite ion, NO2-, HNO3, H2SO4 बनाइए, H2SO3 बनाइए, SO2 and SO3. In case if you find any problem, just let me know in the comment section and I'll try to solve that problem. So thanks for watching and please subscribe this channel.